Hi, I'm Ayushi, and this is my failure story. I know that this is a channel जहाँ पर मैंने अब तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जैसे कि like a lot of tough phases of my life as well as the ones in which I have learned and grew a lot in my life. So this video is gonna be the one wherein I am here to share all of the failures and rejections I've had in my life in some way or the other, because I consider that these are the ones जिन्होंने मुझे shape up करने में help की है काफ़ी सारी चीज़ें. The best part about these is इन्होंने समझाया है कि I don't actually consider these as failures, but still these were the ones जहाँ पर I wasn't able to succeed into certain things. So I just consider that these small rejections and failures or the setbacks are the ones which shape you up for a better future and which turn you into an individual who you are meant to be. So let's get started with the video. तो शुरुआत होती है, मतलब जितना आई रिमेम्बर मुझे जो एक्चुअल सेंसेस आने लगे थे दैट वाज लाइक क्लोज टू व्हेन आई वाज मे बी इन यूकेजी 1, 2 or 3 maybe. From first or second class, I like around 6 to 7 years old, I was at least aware of my senses and whatever used to happen in and around me, and I used to love the things and you know I used to understand the things around me and used to learn a lot. The whole world was very new for me, as usual, as each one of us goes through life. But okay, so let's get started with the ones when I was in class first. तो होता यूँ था कि अपनी क्लास में ना कि like बहुत सारे बच्चे थे, but I used to study in an ICSE board school. So from first class, what used to happen that there were a lot of students. Out of that there was one person who was the son of our principal. So let's maybe name him Chit. So this person was the one जिससे मैं देखती थी कि जैसे क्लास की सारी लड़कियां हैं ना, तो जिसे उसे अगर पेंसिल की जरूरत है, they all will be the ones कि come on, you can take my pencil, you can take this, you can take that, always there to help him, always there to take his bottle and go and fill it up and this and that. And I used to think, why does this happen? I mean, क्या वो कुछ किसी को कुछ दे देता है या फिर हेल्प कर देता है क्या कि सब जाके इतनी ज़्यादा उसकी मतलब खिदमत करती हैं. Mostly girls and boys also used to have a lot of good friendship with that person. So I used to think that way, and I was a very shy and reserved kid since my childhood. I was अगर क्लास में आप आओगे और अगर मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि आई एम अ dumb person. I don't even know how to talk. And that was actually the case. I didn't really know how to talk to people. I was just मतलब मैं इतनी छोटी थी, इतनी ज़्यादा खुद को ऐसा समझती थी कि ये जो पूरी दुनिया है, I just need to watch everything. I just liked to watch everything happening around me, understand things the way they are, and I didn't really knew how to react to things, there were a lot of things missing inside me, and that was actually like हम बचपन में जैसे होते हैं वैसे ही थे. But तो I used to think कि क्यों सब इतने ज़्यादा इससे दोस्ती करने को रेडी हैं and this and that. और एक दिन मैं जाती हूँ उसके पास and I offer him my pencil. He says no, I don't want your pencil. I was like, what? Why? Then I didn't tell him anything. I didn't ask him anything. I was like, क्या मतलब वो होता है, एक कॉन्शियसनेस आती है, एक अजीब सी वो आती है कि सब इससे दोस्ती कर रहे हैं, तो फिर लाइक मेरा दिमाग तो इतना अब मैच्योर है नहीं ना कि सब अगर उससे दोस्ती कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी, या फिर व्हाट्स द नीड फॉर मी टू गो एंड डू फ्रेंडशिप विद हिम. बट व्हेन आई गॉट टू सी दैट ही सेड दैट नहीं, मुझे तुम्हारी पेंसिल नहीं चाहिए. आई वाज लाइक, क्या गड़बड़ क्या है? चलो ठीक है, मान लिया, हटा दिया. फिर आई डिडंट ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद दैट पर्सन. और धीरे धीरे हम बड़े होते गए. फिर हम क्लास 3rd में पहुँचे, 4th में पहुँचे. अच्छा, क्लास 3rd में पता है क्या होता है, मेरी ना मैथ्स बचपन से मतलब थोड़ी अच्छी रही है,
फिर वीक हुई है, फिर अच्छी हुई है, फिर वीक हुई है। मतलब मैथ्स के साथ एक बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रहा है। आई डोंट नो व्हाई दैट वाज, बिकॉज मैथ्स के साथ मतलब बहुत ज़्यादा एक अलग अलग से फेजेस देखे हैं मोस्टली। जैसे बचपन में था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का था। थर्ड और फोर्थ से हम फोर्थ क्लास से बेसिकली हम बॉडमास रूल सीखते हैं, तो वहाँ पे पहले ही समझ आता है पहले ब्रैकेट्स, फिर यू नो दैट पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिक्स। तो जब थर्ड क्लास में थे तो देयर वुड बी वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आपको करना होता है, बट दोज वर्ड प्रॉब्लम्स आर द वंस जिनमें आपको 2 या 3 लाइन्स पहले पढ़नी होती है, फिर समझना होता है कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। एंड आई यूज्ड टू बी दैट किड जिसे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं उस पेज को, उन वर्ड्स को, आई मीन उन लाइन्स को 2-3 बार पढ़ लेती थी। And मतलब my mother used to teach me since my childhood. I've never really like my mother and father both are very good teachers and they have उन्होंने ही मुझे बचपन से पढ़ाया है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आया करते थे और मुझे वो क्वेश्चंस ही समझ नहीं आते थे। मुझे बस ये दिखते थे कि 2 नंबर्स हैं, अब मैं इनके साथ क्या करूँ, या तो मल्टीप्लाई करूँ या तो सब्ट्रैक्शन करूँ या तो डिवीजन करूँ, क्या करूँ तो क्या करूँ एग्जैक्टली। बट ठीक है, कुछ भी करके आ जाते थे और उसमें मार्क्स कम आते थे, बिकॉज आई डेंट रियली नो कि क्या करना है इन नंबर्स के साथ। तो फिर मम्मी ने बहुत एफर्ट्स डाले कि सीख जाऊँ मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत 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 प्रैक्टिस कराया, बट मुझे किसी हाल में समझ ही नहीं आता था, बिकॉज आई जस्ट यूज टू थिंक कि अगर मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ तो इसमें इतना ज़्यादा इंग्लिश लाने की क्या ज़रूरत है, तो सिंपली बोलो ना सब्ट्रैक्ट दिस एट दिस दिस दिस। तो आई वाज लाइक दैट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए, मैथ्स में बहुत मार्क्स कम हो जाते थे। फिर फोर्थ क्लास में हम आए, यहाँ पर फिर धीरे धीरे मैंने मतलब पेस कैचअप करना सीखा एंड माई टीचर स्टार्टेड ट्रेनिंग मी लाइक किस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एंड धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि यार वर्ड प्रॉब्लम्स आर मच ईजियर दैन द वंस जिन्हें आप सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करते हो, बिकॉज मैथमेटिकली आप अगर सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो मे बी आपको कुछ और स्टेप्स ऐड करना है, ये वो करना है, बट अगर वर्ड प्रॉब्लम्स है सिंपली उसने आपको कह दिया कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, या फिर मतलब वही ऐड ऑन करना है, ऐसा कुछ तो करना है, एक स्टेप में हो जाएगी वो चीज़। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट एंड दैट्स इट। तो ऑब्वियसली ये बाद में सीखा, बट शुरुआत में बहुत बुरा लगता था कि सबके अच्छे मार्क्स आते थे, सबको सब कुछ आता था। यू नो देयर यूज्ड टू बी दिस gang of 2 or 3 people in my class who were very good at their studies, and I used to think that I would also become a part of them when I would also start scoring very well in my examinations and marks and such stuff like that. तो इस तरीके से शुरुआत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मैं बचपन से एक ऐसी मतलब स्टूडेंट थी जिसके अबव एवरेज मार्क्स आ जाते थे, लाइक 80 to 90 का एक बीच का हमेशा रहता था, कभी कभार 80 से नीचे भी आ जाते थे, बस यही मार्क रहता था। बट never really, like till 11th, never really in my life I had scored above 90 or even touched the 90 score mark. So yes, that was something जो कि मैं भी सोचती थी कि यार और भी बच्चे होते थे हमारी क्लास में, उन सब के हमेशा 90 के प्लस मतलब मार्क्स आते थे, जो एक आध टॉपर्स की लिस्ट में जो कुछ बच्चे आते हैं ना वो उनके आते थे। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं। पापा भी मतलब बचपन से समझाते थे कि you know, I understand that you put a lot of efforts into your studies, but if you start putting up little more focus into things will become much better for you. तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे समझती हूँ कि अच्छा मतलब I am on the right track, but मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर धीरे धीरे हम 4th, 5th, 6th में आते हैं। 6th में आते आते भी मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, बिकॉज अब काफ़ी थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के रूल्स वगैरह आ चुके थे। 5th तक फिर भी ठीक था, और जैसे ही हम 6th पे जंप करते हैं ना, अपना करिकुलम बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज होता है। पहले आप अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स थे, इसके बाद 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। 11 सब्जेक्ट्स आई स्टिल रिमेंबर होते हैं जो कि कोर्स सब्जेक्ट्स होता है, और बाकी अदर 2, 1 GK एंड अनदर 1 MSc, जिनमें से GK भाई साहब आई यूज्ड टू हेट GK। क्यों? बिकॉज ठीक है कुछ चीज़ें तो समझ आ जाती थी, बट मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होती थी लाइक उनमें कुछ जोग्राफिकल लाइक ये अपना मान लो टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज, यूनियंस, ये वगैरह सारी चीज़ें याद करनी होती थी। और
I was very bad since my childhood to learn things, to remember things. Could understand things. I could give you an answer. If you tell me a story, उसके बाद आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे, मुझे सब बन जाएगा. बट तो अगर कोई मुझे ये बोले कि ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इतने स्टेट्स हैं, ये सब आपको याद करना है, नो. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझसे याद नहीं होते थे. तो फिर जो जीके में मार्क्स कम होते थे, ठीक है. इसके बाद कभी कभार कंप्यूटर समझ नहीं आता था, उसमें बहुत मार्क्स कम होते थे, बिकॉज हमें कंप्यूटर लैब ले जाया जाता था. एंड दैट यूज्ड टू बी द फेस जब आई डिडंट हैव एनी कंप्यूटर और लैपटॉप इन माई होम. बट हाँ, स्कूल में बचपन से सीखा था. तो फिर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि समझ नहीं आते थे, जो कि टीचर्स बता दें, बट मुझे अपनी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है. बट आई वॉज दैट शाई एंड रिजर्व किड जिससे बात करना भी नहीं आता था, तो मैं टीचर्स से भी नहीं पूछा करती थी वो चीज़ें. दोज यूज्ड टू बी इन माई माइंड कि यार सबसे मतलब मेरे आसपास. अब अगर इनमें मैं अगर क्वेश्चन पूछने लगी, वोंट आई साउंड डम? मतलब जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ द थॉट्स इन माई माइंड. तो इस तरीके से होता था. और ठीक है, मतलब पहले तो बहुत फेलियर्स देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, बट धीरे धीरे जब दोस्त बनने लगे अच्छे, तो दे स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन स्मॉल एंड बिग थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो फिर धीरे धीरे सीखा. फिर जीके तो यार मतलब हमेशा से मुझे कभी भी याद नहीं हुआ, क्योंकि अपने जो सिलेबस होता था ना, मोस्टली हाफ ईयरली और एनुअल में एग्जाम्स में अपने जीके की बुक पूरी आया करती थी. मतलब हाफ ईयरली में मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ द बुक आएगी और एनुअल एग्जाम्स में पूरी बुक आ जाएगी. 6th क्लास से वी यूज्ड टू हैव दिस रूल कि आपके एनुअल एग्जाम्स में आपको पूरा सिलेबस पढ़ के आना है, वही आएगा आपके एग्जाम में. जबकि आई यूज्ड टू सी दैट द अदर पीपल जो कि या तो स्टेट बोर्ड से होते थे या तो CBSE से होते थे, उन्हें क्या करना होता था कि उनका सारा सिलेबस एक्चुअली एनुअल एग्जाम्स में नहीं आता था. दूसरी बात, हमारा पूरा आता था. और दूसरी बात, उन्हें अपने एक एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 दिन की छुट्टियां मिला करती थी. तो दे यूज्ड टू गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर एंड इवन practice for the exams, and I used to not get that time, and even though having 13 subjects in a row, 2 हफ्ते में वो सारा निपटा देते थे. तो ऐसा होता था. तो फिर टाइम बहुत कम मिलता था, बट ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है. 6th क्लास में आई स्टिल रिमेंबर आई डिडंट गेट टू मच ऑफ अच्छे मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, कुछ 77 पे आ चुके थे. और पापा बहुत, उन्हें पसंद नहीं आई ये चीज़ कि यार इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्या मतलब उनके ना हमेशा ईगो पे लग जाती थी कि यार अगर मेरी बच्ची के कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो इट्स ऑल ऑन मी दैट आई विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हर एंड दिस एंड लाइक दैट. तो फिर उन्होंने फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया मुझे. 7th क्लास में फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई. बट फिर भी एंड में मतलब मैथमेटिक्स में बहुत वो जियोमेट्री, एल्जेब्रा वगैरह के, एल्जेब्रा फिर भी अच्छा लगता था. जियोमेट्री वगैरह के जो क्वेश्चंस होते थे, आई डेंट यूज टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट. इवन दो अगर मुझे कुछ कंसेप्ट समझ आ भी जाते थे, तो भी मुझे एग्ज़ाम से पहले किस तरीके से पूरी बुक को कवर करना है. एक दिन पहले सिर्फ हाफ डे आपको मिलता है ना, लाइक आज एक एग्ज़ाम है, अगले दिन कल दूसरा एग्ज़ाम है. अगर मैथ्स के लिए मान लो कई बार ऐसा होता था कि मतलब संडे की छुट्टी मिल गई, मंडे को मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो सिर्फ एक दिन में आई जस्ट यूज टू थिंकिंग कि मैं कैसे पूरा सिलेबस कवर करूँ. मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली. सो पता नहीं, उस वक्त तो समझ नहीं आता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती थी पर नहीं बनता था, कुछ चीज़ें रह ही जाती थी. फिर धीरे धीरे करके मतलब सीखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वगैरह वगैरह. और वैसे 7th में let me tell you, I scored very bad marks in one of my half yearly exams. The marks even went down to like out of 80 I scored 45. और क्या होता था वो, अब हमें वो आंसर शीट्स सिग्नेचर कराने होते थे अपने पेरेंट्स से और फिर उन्हें सबमिट कराना होता था. और मेरी तो भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, मेरी नर्वसनेस ख़त्म ही ना हो, मैं पापा से साइन ही ना करा पाऊँ. मम्मी भी लाइक नहीं, मैथ्स का तो मैं साइन नहीं करूँगी, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का साइन करा लो, मैथ्स के भाई जिम्मेदारी तुम्हारे पापा की है. मम्मी की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ठीक है, मतलब 7th 8th का तो नहीं पढ़ा पाती थी. तो शी वाज लाइक ये तो तुम्हारे पापा ही करेंगे और वैसे भी तुम्हारे मार्क्स कम है, सुनो अब उनसे. तो फिर ठीक है, बहुत डांट पड़ी पापा से, बहुत ज़्यादा नहीं करे उन्होंने साइन. फिर सुबह अगले दिन इस तरीके से करा के गई. पापा ने प्रॉमिस कराया कि आज से मैं पढ़ाऊँगा मैथ्स हर दिन 1 से 1.5 घंटा एंड यू विल हैव टू सिट विद मी एंड स्टडी.
मैंने कहा ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड यू नो माई फादर इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन एट टाइम्स, स्पेशली व्हेन he is teaching his kids, he doesn't have much of patience। तो फिर मार भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, पर ठीक है, सीख जाते थे। तो धीरे धीरे लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट आया। 8th-9th के बाद से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया। 9th के बाद इसलिए भी आया बिकॉज आई गॉट वन टीचर हु वाज वेरी ब्रिलियंट इन मैथ्स एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी उन्होंने मेरी नॉलेज। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताते थे। यू नो वी एक्चुअली गेट सच टीचर्स इन आवर लाइफ एट सम पॉइंट और द अदर जो पूरा रुख ही चेंज कर देते हैं। तो दैट टीचर वाज दैट इन माय लाइफ फॉर 9th and 10th क्लास। और तब मुझे समझ आया कि यार नहीं यार, अब तो अगर कुछ करना है तो मैथ्स के फील्ड में करना है, विच इज़ वाई आई एम अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट टुडे। मतलब ये तो चलो एकेडमिक्स की फील्ड में थे, अगर रियल लाइफ की फील्ड में देखो तो आई वाज इन 2nd क्लास। जब 2nd क्लास नहीं, जब मैं UKG में थी तब से पापा ने मेरे लिए मतलब एक्चुअली My hometown is West Bengal, but I have grown up in Madhya Pradesh with my parents। तो पापा ने बंगाल से ही हारमोनियम मंगवा लिया था जब मैं UKG में थी कि आई विल टीच माई लाइक आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न एवरीथिंग अराउंड म्यूज़िक, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब उनका बहुत शौक था एक म्यूजिशियन बनने का। बट उन्हें मतलब फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से ही couldn't do that, so he wanted me to learn that। बट जब मैं 2nd क्लास में थी तब से एक टीचर लगा दिया गया और वो बहुत दूर से आया करते थे मुझे म्यूज़िक सिखाने के लिए। और मुझे उस वक्त पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आई वाज लाइक क्यों सिखाया जा रहा है मुझे, बिकॉज यू नो लर्निंग म्यूज़िक और इवन लर्निंग एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, अगर आप स्क्रैच से सीखना स्टार्ट करते हो it is very boring। you will have to go through all of the boring part of that and then you will come to that stage जब आप उस चीज़ को enjoy करने लगोगे। and I was so small to understand this fact। तो फिर मैं तो मतलब गिव अप कर देती थी। 1 घंटे के लिए वो टीचर पढ़ाया करते थे, मतलब समझाया करते थे सारी चीज़ें अबाउट म्यूज़िक। मैं मतलब 1 घंटे को सिर्फ सर्वाइव किया करती थी, बिकॉज मुझे इतना बोरिंग लगता था कि यार ये इतनी बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, सारे गामा पा धा नी, इन 8 चीज़ों के बेसिस पे हफ्ते दर हफ्ते वही चीज़ें सिखाई जा रहे हैं। और हारमोनियम पे आपको पहले पंप करना सिखाया जाता है, फिर रीड्स दबाना सिखाया जाता है। ऑल्दो आई धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा सीख रही थी मैं, बट पता नहीं क्यों इंटरेस्ट सा नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वो जो टीचर है उन्हें सारी चीज़ें खुद आती थी, बिना डायरी के आती थी। और मुझे उन्होंने जिस तरीके से सिखाया था, मुझे एक डायरी दी थी, उससे इतना सारा लिखा था। और मैं डायरी के बिना मुझे याद ही नहीं रहता, मुझसे मतलब आई वॉज वेरी बैड एट यू नो रिमेंबरिंग थिंग्स। तो फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे डायरी से देख कर ही बजाना होता। एंड दैट यूज्ड टू बी अ बिट बोरिंग फॉर मी। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जब मतलब कितने एटलीस्ट 5 to 6 years हो गए, तब आई गॉट टू नो कि यार नहीं, म्यूजिक इज़ अ गुड थिंग एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली समथिंग जहाँ पे आपको सिर्फ सीखना है और इट्स बोरिंग। नो, इट इज़ फॉर योर ओन प्लेजर। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग म्यूज़िक और धीरे धीरे कुछ भजन, कुछ भक्ति के गीत, ये सारी चीज़ें सीखनी स्टार्ट की। इतने सारे राग जितने गुरुजी ने सिखाए थे, उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह भी देने स्टार्ट किए, ठीक है, एंड डिप्लोमा वगैरह भी किया म्यूज़िक में। म्यूज़िक मतलब 10th क्लास तक तो रहा ही है, बिकॉज 10th तक आई वाज इन माई होम, तो आई गेव ऑल द एग्जाम्स एंड आई डिड माई डिप्लोमा इन दैट। तो मतलब ये वो वाला फेज था जहाँ पे मैं ग्रेजुअली चीज़ें सीखी, बट बहुत बार फेलियर्स आए। यू नो इवन इन जब 7th और 8th क्लास में थी, तो जब गुरुजी जैसे कोई भी भजन सिखा के जाते थे, तो भजनों में क्या होता था कि वो सारे एक बीट्स नहीं लिखा करते थे नोट्स पे। तो वो जैसे ही सिखाते तब तक तो मुझे याद रहता है, पर जब वो चले जाते हैं मुझे वो सारी चीज़ें भूल जाती है। आई वाज अ वेरी बैड पर्सन इन लर्निंग थिंग्स। सो ऐसा होता, बट धीरे धीरे तो फिर उस पर बहुत डांट पड़ती पापा से कि 1 घंटे तक सिखाया उनने, इतनी मेहनत करी तुम पे एंड यू स्टिल डोंट रिमेंबर थिंग्स। तो फिर बहुत बुरा लगता था, कई बार रोती भी थी। आई यूज्ड टू यू नो शैटर कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझे सीखना भी है पर मुझसे सीखा ही नहीं जा रहा है, ये कैसी चीज़ है। बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा यू नो कंस्टेंट प्रैक्टिस, रियाज के साथ और धीरे धीरे सीखी। और मतलब अब तो ऐसा है कि अगर हारमोनियम है तो उस पर अपन अलग अलग गज़लें सुनेंगे, वो बजाएंगे। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो समडे ऑन द काइंड ऑफ गज़ल्स आई कैन सिंग ऑन माई हारमोनियम। इसके अलावा जब व्हेन आई वाज इन माई क्लास 7th आई गेस या 8th, तब पापा ने फिर
वो तबला मंगवा लिया। अब पापा ने तबला इसलिए मंगवाया था कि मतलब हारमोनियम के साथ तबले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बट वी डिडंट रियली हैव एनीवन इन आवर हाउस जो जिसे तबला बजाना आता हो। तो मेरे जो गुरुजी आते थे वो ही बजाया करते थे और मैं साथ में हारमोनियम को बजाती थी, एंड इट यूज्ड टू साउंड वेरी गुड। तो माई फादर यूज्ड टू लव दैट टाइम, एंड मोस्टली संडेज़ को आते थे मेरे गुरुजी सिखाने। संडेज़ को पापा करते रहते थे, ही वॉज अ टीचर, तो ही यूज्ड टू एन्जॉय दैट टाइम अ लॉट। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार म्यूजिक इज फॉर आवर ओन प्लेजर, फॉर आवर ओन मेंटल थेरेपी। लिटरली आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। और अब मुझे समझ आता है कि यार उस ज़माने में ना वी डिडंट यूज टू हैव एनीथिंग, एनी कम्युनिकेशन, और उस वक्त पे इंटरनेट का ज़माना बिल्कुल भी नहीं था। इंटरनेट तब आया जब आई वॉज इन माई क्लास 10th। तो उस वक्त पे आई यूज टू, अब समझ आता है कि यार वो मतलब वो फेज था जब मेरे पापा को थेरेपी मिलती थी सिर्फ गाने की आवाज़, म्यूज़िक सुनने से, क्योंकि बचपन से उनमें वो क्रेविंग थी वो चीज़ सीखने की। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि हाउ बिग was it that he had to compromise on all of that, which is why he wanted me to learn all of that. So बस ऐसा होता है, और फिर अपन सीखते हैं धीरे धीरे। आज तो भाई बहुत बहुत मज़े आते हैं। आई जस्ट नाउ यू नो, अब अगर मैं हारमोनियम बजाती हूँ तो दैट इज़ ओनली फॉर माई ओन प्लेजर, फॉर माई ओन हैप्पीनेस। एंड नाउ फादर ऑल्सो एन्जॉयज इट, बिकॉज अलग अलग गज़लें सीख मतलब बजा देती हूँ। कोई भी गाना बोल दो ऑटोमेटिकली अब सीख जाती हूँ उसको बजाना। ऑल्दो इट टुक मी लाइक 12 years of to understand and learn a lot of this, but you know 12 years are a lot. हर संडे टू संडे एक टीचर का आना और आपको हर एक चीज़ सिखाना बारीकी से उस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आपको अच्छा बनना है, एक्सपर्ट बनना है। Now I really understand that how important was it, and this is something which I have only kept as my hobby. 10th के बाद I moved out of my home, 11th 12th में hostel, उसके बाद फिर college, उसके बाद फिर बस अभी चल रही है लाइफ। सो उसके बाद से घर पे ज़्यादा रहना नहीं हुआ, बट जब भी आई गो 12th के बाद से पापा ने फिर गिटार दिलाया, बिकॉज चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो ये सीखा था। इसके बाद ड्राइंग में क्या हुआ था 7th और 8th क्लास में, मतलब मेरी ड्राइंग बचपन से बहुत बेकार थी, बहुत 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 बेकार थी। जब हम जिस बस से जाते थे तो उसमें कार्मल कॉन्वेंट, केंद्रीय विद्यालय और MGM, मतलब हमारा वाला जो ICSE बोर्ड का स्कूल है, तो मतलब बेसिकली 2 CBSE बोर्ड्स और एक ICSE बोर्ड्स के, इन तीनों के बच्चे एक साथ जाते और एक साथ आते थे। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद दोज किड्स, और मैं देखती थी कि उनकी जो ड्राइंग बुक्स हैं वो प्लेन शीट्स में होती थी, और उनमें वो बच्चे इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाया करते थे, इतनी अच्छी आर्ट बनाया करते थे कि मैं देखती रह जाती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार मुझे तो बस अगर ड्राइंग का कुछ बोलो तो मुझे वो घर और पीछे के पहाड़ बनाने आते हैं, दैट्स इट। बट 7th 8th क्लास से अपनी मतलब अच्छे थोड़े आर्ट फॉर्म्स वगैरह जब आए स्कूल में, तो मुझे मेरा भी इंटरेस्ट जागा धीरे धीरे। आई यू गॉट टू नो कि मुझे वो पेंटिंग कलर्स में इतना ज़्यादा आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट उतना अच्छा नहीं हो पाता था। लेकिन पेंसिल स्केच वॉज द वन जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा धीरे धीरे। और आई यूज्ड टू, मतलब 8th क्लास में जो ड्राइंग की बुक थी ना, आज भी बहुत संभाल के रखा है घर पे, तो उस पर जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है मोस्टली वो पेंसिल स्केचेस की होती थी। एंड आई यूज्ड टू लव एंड एंजॉय दैट प्रोसेस, इट यूज्ड टू बी सो मच थेरेप्यूटिक टू अस। तो ऐसा होता है, और फिर धीरे धीरे इस पर इंटरेस्ट जागता है। बट जो कलरिंग का पार्ट आता है, जहाँ पर आप एक्चुअली मतलब पेंटिंग कलर्स से कलर कर रहे हो, वो वाला पार्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया हमेशा। आई वॉज वेरी बैड एट इट। आई जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, बट आई कुड नेवर गेट वेरी गुड एट इट, इतना कि मैं किसी को शो कर सकूँ कि सी दिस इज़ माई आर्ट एंड दिस इज़ माई वर्क। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा कह सकते हैं फेलियर्स या सेटबैक्स देखे थे, या मे बी आई कंसिडर इट कि मुझे और ज़्यादा वक्त देना चाहिए था या फिर सीखने का वक्त देना चाहिए था। बट यू नो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में घुसे हुए थे अपन, ऐसे बच्चे थे ना, 13 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, हर एक को हर दिन पढ़ना होता था, वरना फिर याद ही नहीं होते थे एग्ज़ाम्स से पहले। तो फिर उसका भी एक अलग प्रेशर था साथ में ड्राइंग वगैरह करना। तो फिर भी आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग। इसके बाद हाँ, डांस। I was in class 4th when my parents started sending me to a dance class.
literally to a dance class because they wanted me to get better at dance and music. और आप में से जितने भी मतलब कुछ बंगाली फैमिलीज से आते होंगे या फिर आपको पता होगा जो बंगाली फैमिलीज होते हैं उनमें जो किड्स होते हैं या फिर उनमें जो लोग होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर किड्स और देयर पीपल टू लर्न थिंग्स विच आर co-curriculars, which are apart from the academics, which is why my parents wanted me to give much more interest into the things apart from academics. पापा हमेशा से यही बोलते थे कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, हर एक के माँ बाप पढ़ा देंगे, उनके बच्चे पढ़ देंगे, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई के अलावा क्या आता है. You need to learn all the co-curriculars. I used to understand that. तो हाँ, डांस से शुरू करता है. जब डांस वाला फेज आता है 4th क्लास से, मेरी बॉडी बिल्कुल मतलब ठीक है फ्लेक्सिबल थी, बट it didn't really know how to do the moves, and I was not very good at dancing. I was very bad at dancing, very 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 bad. In fact, I still remember 1 साल का पूरा मतलब बहुत खर्चे लगते थे ऑब्वियसली, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, पढ़ाई, सारी इन्वेस्टमेंट जितनी थी ना सब कुछ मेरे ऊपर करी जाती थी बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली एंड माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम द मोस्ट लर्नड स्कॉलर ऑफ द फैमिली. तो हाँ, डांस क्लास में 1 साल तक गए, उसके बाद एक कंपटीशन सॉर्ट ऑफ हुआ, या फिर कंपटीशन नहीं लाइक ग्रुप डांस सॉर्ट ऑफ हुआ कॉलोनी में ही. तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं शायद 5th में थी और हाँ भेजा गया उस डांस के लिए, साथ में ग्रुप में के लिए. आई वाज सो मच एनॉयड, सो मच नर्वस कि मैं देखी कि ग्रुप के सारे बच्चे जा रहे हैं. मतलब कोई मेरे को खींच के ले जाएगा तभी मैं जाऊंगी, वरना तो मैं नहीं जा रही डांस करने. एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. आई डिडंट इवन गो टू द स्टेज एंड डांस. आई मतलब सोचने वाली बात है, मैं इतने अच्छे से तैयार हूँ, मुझे इतने मेहनत से तैयार किया गया है और मैं स्टेज पर भी नहीं गई. क्यों? क्योंकि आई एम सो मच वरीड कि मुझसे नहीं किया जाएगा, मुझसे नहीं होगा. और यही हुआ एक्चुअली. आई डिडंट इवन डांस, बट फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप शायद 2nd या 3rd आया था, तो आई ऑल्सो गॉट द प्राइजेज ऑफ द बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वो जो टीचर थी उनका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और जाके रहने लगी. तो शायद 2 या 3 साल के बाद डांस क्लास का हट गया. बिकॉज द थिंग इज़ जिस जगह पे हम बड़े हुए उस एरिया पे MP में बिल्कुल भी माहौल नहीं है म्यूज़िक या डांस या फिर ऐसा कुछ भी सीखने का. तो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर माई फादर टू इवन अरेंज फॉर अ गुड टीचर एट दैट टाइम. उस टाइम तो मतलब बहुत कनेक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी और सिर्फ फ़ोन था, मतलब बटन वाले फ़ोन्स ऑपरेट हुआ करते थे, उनमें तो कैसे कनेक्शन बनाए जा सकते. बट फिर भी he had a lot of courage to teach me certain things. So that was it. तो डांस मतलब वो होते होते रह गया. आई स्टिल रिमेंबर निम्बुड़ा के स्टेप्स सीखा करते थे, उसके भी सीखा करते थे. नचले आजा नचले वाला जो भी था, तुझ में दबने बना दी जोड़ी के सॉन्ग्स उस वक्त पे वो आउट हुई थी और उसके सॉन्ग्स तब आउट हुआ करते थे. मतलब उस पर सब डांस किया करते थे और मेरी कमर ही नहीं लग सकती थी. बिल्कुल समझ नहीं आता था कि सबके इतने अच्छे डांस मोव्स होते थे, इतने क्लियर, इतने फिनिश्ड, इतने पॉलिश्ड, बट मेरे ही नहीं हुआ करते थे. तो वहाँ पे समझ आया कि यार दिस इज समथिंग लैगिंग इन मी एंड आई शुड हैव वर्कड ऑन दैट, बट आई नेवर डिड बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ फेलियर, आई डोंट नो हाउ टू डांस. एंड टिल द डेट आई फील लाइक दैट. बट आज में उस दिन में डिफरेंस ये है कि आज आई इवन डांस for the sake of my own pleasure. When I feel happy, I feel like dancing, and I never even observe or record myself कि how am I dancing. I just dance to express my happiness. That's it. तो ऐसा होता है. But I can never dance in public. हाँ, अगर दोस्त हैं अच्छे वाले तो senseless dance कर सकते हैं. That's it. तो that was. उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो सीखने की कोशिश करी. तबला सीखने की कोशिश करी थी, बनाई नहीं. इतने ज़्यादा बीट्स वगैरह इतना सारा सब कुछ सिखा दिया टीचर ने, मतलब गुरुजी ने सब कुछ सिखा दिया इतने अच्छे से. फिंगर्स की मूवमेंट वगैरह सब कुछ, मतलब मैं उनको देखा करती थी. बेसिकली मुझे सिखाते तो नहीं थे पेरेंट्स, दे जस्ट वांटेड कि मतलब मैं हारमोनियम बजाऊँ बट साथ में कोई तबला बजा सकता है. और मेरा भाई था, ही इज़ लाइक 8 years यंगर टू मी, तो बट ही वॉज स्टिल वेरी यंग टू मी उस वक्त पे. मतलब 1st या 2nd क्लास में था, तो उसे तो नहीं सीखा जा सकता था उससे तबला. तो
बाद में सोचा गया कि बाद में सिखाया जाएगा, बट मम्मी नेवर एक्सेप्टेड। शी वाज लाइक नहीं, मैं अपने बेटे को तबला प्लेयर नहीं बनने दूँगी। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट थिंकिंग, बट कभी अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो फिर तबला नहीं सीख पाए। गिटार जो कि 12th में लिया था, ठीक है, 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत एफर्ट्स डाले थे। हॉस्टल में रही थी, कोई काम धंधा नहीं होता था, तो बस पढ़ते रहते थे अलग अलग बुक्स। और 12th वॉज द टाइम, 11 12th वॉज द टाइम जब मैं हॉस्टल में रही, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बुक्स मिले। ओ भाई इतनी बुक्स पढ़ी कि पूछो मत, आई वाज अ सक्कर फॉर डिफरेंट बुक्स। तो फिर उसके बाद लेकिन हाँ बहुत मेहनत करी और 12th में अच्छा स्कोर किया, 95% स्कोर किया। तो फिर पापा ने खुश होकर गिटार दिलाया, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं गिटार के लिए किसी टीचर की मांग नहीं करूँगी, क्योंकि अपने आसपास पे कोई टीचर है ही नहीं जो कि हमें सिखा पाए, बहुत दूर दूर से हैं। अब उनके आने का जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आई टोल्ड हिम, और वो तब फेज था ना जब अपने पास फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह आ चुकी थी। तो आई ऑल्सो थॉट कि अगर मैं लूँगी भी कोई कोर्स तो ऑनलाइन ले लूँगी, बहुत अच्छे से सिखा दिया जाएगा शायद मुझे। तो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। लॉकडाउन का फेज़ आया, डेढ़ साल का। तो 12th के बाद 1.5 साल लगभग हर दिन गिटार बजाया करती थी, हर दिन। पहले वो हाथों में स्कार्स आए, धीरे धीरे सीखा कि अच्छा होल्ड कैसे करना है, फिर वो कैप को कैसे सेट करना है, उसको कैसे सेट करना है, हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी। धीरे धीरे उसको चलाना भी सीखा। कई ऐसे सॉन्ग्स थे जो कि मतलब आप सिर्फ टैप्स पे बजाते हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे आप सिंग करते हो और सिर्फ स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हो। तो फिर टैप्स वाली चीज़ें आने लगी, बट खुद सिंग करने के साथ कैसे बजाते हैं वो इतनी एफर्ट्स के बाद, 1.5 साल के एफर्ट्स के बाद भी नहीं सीख पाई, और आज भी नहीं सीख पाई, क्योंकि अब घर से अलग हो गए। अब वो गिटार को वहाँ से ला पाना इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो वो रह गया दैट आई फील लाइक आई हैव गिव अप। एंड पापा तो कुछ नहीं कहते, बस खुद को बुरा लगता है कि पापा ने बड़ी शिद्दत से दिलाया था यार गिटार, क्योंकि वो गिटार मेरा इंटरेस्ट था। आई टोल्ड हिम कि नहीं, अगर आप गिटार दिलाओगे तो ये मैं खुद से सीखूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। बट नहीं किया कभी, डोंट नो व्हाई, नहीं किया। इसके अलावा स्पोर्ट्स, चलो स्पोर्ट्स पे आते हैं। क्रिकेट 8th या 9th में थी, तो मेरे जो दोस्त होते थे, जैसे जो मेल फ्रेंड्स थे, वो लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। अब अपने ग्राउंड में आई डोंट नो व्हाई, बट जो लड़कियां थी वो क्रिकेट के अलावा सब खेलती थी। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे फुटबॉल और क्रिकेट ही खेलना है, मुझे कुछ और नहीं खेलना है, पता नहीं क्यों। फुटबॉल तो पता नहीं, पैर बहुत नाजुक थे, तो पता नहीं किसी हाल में भी अगर फुटबॉल को टच भी हो जाए तो पैर ही दर्द